Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. And under this chapter, we have seen that how how the crafts and industries of India uh, were very much famous in the Western countries, especially in Europe. And there were two industries which were really uh, important at that time, the textile industry and the iron and steel industry. And we have started with this the Indian textile and the world market, how Indian textile was so much important in the world market. And we have seen that there were different names to the different Indian textiles, and these names have some history, some story behind them. Like we have seen in the previous class, how this Muslim name was given to a particular textile, and likewise we have also seen that calico was also a name given to the textile which used to come from India. And other than this, there were other important names to the names of India's, which Indian clothes, which were very important at that time. And for that we have seen this is the order page of an order book. The order book is of East India Company uh, in the year 1730. These orders were placed by this ईस्ट इंडिया कंपनी की ये सारी चीजें आपको करनी है. इसी में एक और नाम हमें पता चलता है इसी ऑर्डर बुक से, दैट इज अबाउट छिंड्स, जो कि आपको मैंने बताया था. जैसे कि छिंड्स का मतलब क्या हुआ, प्रिंट, जिसको हिंदी में हम लोग छींट कहते हैं, उसी को ये उसी का ये एक नया नाम है छिंड्स. और ये छिंड जो था वो अमेरिका ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फेमस था. यहाँ तक कि क्वीन भी जो है वो ऐसे ही इंडियन फैब्रिक्स जो है उसको पहनना करती थी. सी लव टू वेयर इंडियन टेक्सटाइल, इतने अच्छे क्वालिटी के होते थे जिसकी वजह से. अ, इसी में एक और नाम हमारे सामने आता है, दैट इज बंदना. बंदना इट्स टाई एंड डाई से जो चीजें बनती हैं, आज के समय में हम उसको टाई एंड डाई कहते हैं, बांधनी कहते हैं, वही बंदना, बांध के जो चीजें बनती है. जैसे कि ये पैटर्न आता है बांधनी का, ठीक है, जिसको बंदाना कहा जा रहा है या बांधना भी कहते हैं, ये इसका पैटर्न आता है. ठीक है. अब इसके बाद हमने ये भी वी हैव आल्सो स्टार्टेड कि जब अर्ली 18th सेंचुरी आया तो इंडिया की जो क्लोथ्स थी वो तो आराम से वहां जाती थी ब्रिटेन में, और बहुत ज्यादा उसकी डिमांड हुआ करती थी. But this high demand of Indian clothes in Europe was causing trouble for the European textile producers. And the British wool and silk producers, they were in trouble because their products were not in demand in their own country. The fabrics from India were very much in demand, है ना. So we see that wool and silk producers, textile producers, we can say, of England, they started protesting against this import of Indian cotton textile. They wanted that Indian cotton textile should not be imported, है ना. And they wanted that there should be ban on the import of Indian cotton textile, and they succeeded in their demand. In 1720, we see that the British government enacted a legislation. Legislation का मतलब क्या हुआ, एक एक्ट बनाया, एक कानून बना. And according to this legislation, what happened that the use of printed cotton cloth,
है ना, द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चेन्स वर बैंड। छिंड्स को बैन कर दिया गया कि आप इंग्लैंड में हैं तो आप छिंड्स नहीं पहन सकते, है ना। और इसी एक्ट को, ये जो 1720 का एक्ट था, इसको एक क्या नाम दिया गया, दिस एक्ट वाज गिवन द नेम ऑफ कालिको एक्ट, क्योंकि इसने कालिको कपड़े पर, जो कालिको कौन से कपड़े होते थे जो कि इंडिया से जाते थे, उनको कालिको कहा जाता था। तो इस एक्ट ने कालिको कपड़ों पर बैन लगा दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कालिको एक्ट। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे, उनको फायदा मिला। जब इंडिया से जाने वाले टेक्सटाइल पर रोक लग गया तो दे वर इन अ बेनिफिशियल पोजीशन। नाउ वी सी दैट अब वो इंडियन डिजाइन्स को वहां पर इमिटेट भी किया जाता था, और इसी पर्पज से कालिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी खोला गया था। दिस इज important, है ना। द फर्स्ट to grow under government protection was the calico printing industry, and इस calico printing industry में इंडियन डिजाइन्स जो थे उसको इमिटेट किया जाता था और प्रिंट किया जाता था। लेकिन जो कपड़ा यूज होता था ना, वो तो मुस्लिन ही कपड़ा था, जिस पर कि उसको वो वहां पर वो मतलब प्रिंट करते थे। यहाँ से प्रिंटेड कपड़ा नहीं जाता था, सिर्फ मुस्लिन जाता था। ठीक है। इसी समय और भी जो ये सब चीजें हमने कल कर किया था, अ, और भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं इंग्लैंड में। लाइक 1764 में स्पिनिंग जेनी आ जाता है, जॉन के ने जिसको इन्वेंट किया था, है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्पिनिंग जेनी से क्या होगा कि इसमें एक ही सिंगल वर्कर जो है वो कई सारे स्पिंडल्स को ऑपरेट कर सकता है एक साथ, है ना। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंग्लैंड में कॉटन क्लोथ्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। और इसी समय स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन होता है, जिसको कि रिचर्ड आर्कराइट ने मार्केट में जो आया स्टीम इंजन, वो रिचर्ड आर्कराइट के कारण ही आया था। हालांकि इन्वेंशन उसका जेम्स वॉट ने किया था, लेकिन उसको आगे कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना ये रिचर्ड आर्कराइट का काम था। और इन्होंने 1786 में कॉटन टेक्सटाइल की जो वीविंग की जो इंडस्ट्री थी, उसमें पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ गया। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज वी फाइंड दैट द clothes now were woven in a great quantity, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनका वीविंग होने लगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल थे दैट कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड, है ना। पूरी की पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रहा था टेक्सटाइल का, उसमें अगर कोई डोमिनेट कर रहा था तो वो इंडियन टेक्सटाइल ही था। ये चला कब तक, ये चला टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के एंड तक ये चलता रहा। इंडियन टेक्सटाइल जो थी वो पूरे की पूरे टेक्सटाइल वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रही थी। ठीक है। और इसी समय जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे, लाइक डच है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, उन्होंने बहुत फायदा भी कमाया इससे, क्योंकि यहाँ से चीजें वो खरीदते थे, है ना। इंडिया से चीजें जो फैब्रिक्स है वो लोअर प्राइस पे खरीदा उन्होंने, और फिर उसको जब वो इंग्लैंड ले जाते थे तो वहां पर वो उसको हायर प्राइसेस में सेल करते थे, है ना। तो इस कारण उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और ये हम देखते हैं कि हमने इसको पहले भी किया था, जब हम देख रहे थे कि कैसे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वाली जो चैप्टर थे, उसमें हमने ये बातें डिस्कस की थी कि जब तक बंगाल का दीवान नहीं बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, बिफोर दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज टू import silver in order to purchase cotton and silk textile in India from India।
उनको ये करना पड़ता था, का सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन जब वो बंगाल में वो बन जाते हैं, बंगाल के जब वो दीवान बन जाते है ना, तो फिर उनको किसी भी तरह से सिल्वर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है, क्योंकि अब क्या है, अब तो वो दीवान हो गए। अब वो दे वर कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम peasants एंड जमींदार, सो दे वर नाउ वेरी रिसोर्सफुल पीपल। अब वो अपना जो खर्चा है आर्मी रखने का, ऑफिशियल्स का, सारा खर्चा अपना इसी पैसे से, रेवेन्यू से निकाल रहे थे। और यहाँ से जो सामान खरीदना था उसके लिए भी उनको ब्रिटेन से सिल्वर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि यहाँ से जो जो भी रेवेन्यू में उनका अर्निंग होता था उससे वो सामान खरीद के फिर उसको बेच देते थे, तो दे कम इन अ वेरी प्रॉफिटेबल कंडीशन। ओके, so you can see the pictures as well. अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो जो पिक्चर्स है वो हम ये जो 17th सेंचुरी में किस तरह से शिप्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर सूरत, गुजरात में सूरत जो कि कोस्टल एरिया है, वहाँ वो हमारे ट्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था इन 17th सेंचुरी, है ना। 17th सेंचुरी में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था। और धीरे धीरे उसका वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैसे ये प्लेसेस जो पहले इतने इम्पोर्टेंट होते थे दे लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, हाउ, है ना। इसी तरह से ये जो है ये पटोला वीविंग को दिखा रहा है। पटोला वीविंग मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप का वीविंग होता था सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में, है ना। और जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी इंडोनेशिया में। एंड ये बहुत इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। फिर ये तो हमने देखा था कि ऑर्डर बुक का ये एक पेज था, है ना। एंड देन वी सी ये जामदारी वीविंग है, दिस वीविंग इज नोन एज जामदारी, जो कि आज भी पटोला, जामदारी, ये सारी चीजें जो है वो आज भी हमारे फैशन में है। हम आज भी इस तरह के टेक्सटाइल्स को यूज करते हैं। ठीक है। अब जामदारी में क्या होता था, एक फाइन मुस्लिन जो क्लोथ है उस पे डेकोरेटिव मोटिव्स लगे होते थे, ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो डेकोरेटिव मोटिव्स लगे होते थे फाइन मुस्लिन्स पे। और उनको उनकी जो वीविंग थी वो लूम पे की जाती थी। और इसमें दो ही कलर मोस्टली, दो ही टिपिकल कलर्स यूज होते थे, ग्रे एंड वाइट। ठीक है। एंड ऑफन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड। जो थ्रेड यूज होता था वो कॉटन और गोल्ड का थ्रेड उसमें यूज होता था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो जामदानी वीविंग के थे वो कौन से थे, बंगाल में ढाका और लखनऊ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। So now we see that this is the example of change. This figure 5 जो आप देख रहे हैं, this is an example of change which was produced in Masulipatanam, which is in Andhra Pradesh in mid 19th century, है ना। And this the another one is an example of bandhana। ठीक है, जो बांधना था, जो बंधना जिसको हमने हम अब टाई एंड डाई कहते हैं, ये उसका एग्जांपल है। So we have discussed about all these, and now we see that the Indian textile was actually ruling the world trade, है ना। It was dominating the world trade till the end of 18th century, and this uh, uh, this was actually benefiting the European trading companies, the Dutch, the French, and the English. They were making enormous profits out of this flourishing trade, है ना। And now we see that uh,
the things started to change. After some time we find that कुछ changes आने start होते, but before that we will focus on this major centers of weaving in the late 18th century. ठीक है, 18th century, late 18th century में इंडिया में ये 4 weaving centers जो थे वो काम कर रहे थे. You can see it here. ठीक है, यहाँ पर 4 वीविंग के 4 सेंटर्स थे. पहला जो है बंगाल. बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट important center. Okay, Bengal was one of the most important center of weaving, and then we find that another center of weaving was Dhaka in eastern Bengal, which is now in Bangladesh. It was also a foremost textile center in the 18th century. And then we see that the next one, the next center was this कोरोमंडल कोस्ट का जो एरिया है वो भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था फ्रॉम मैड्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, है ना. और वेस्टर्न कोस्ट पे जो इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर थे वो गुजरात थे. तो ये 4 मेजर वीविंग के सेंटर्स हमें दिखते हैं. ठीक है, और जिसको कि आप इस मैप में भी यू कैन फाइंड आउट इन दिस मैप एज वेल. ओके, सो जो पहला हमारा सेंटर है वो बंगाल है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटर. देन ढाका. देन जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट. और इसके अलावा अगर वेस्टर्न कोस्ट में हम देखें, वेस्टर्न साइड में देखें तो गुजरात वाज द अनदर सेंटर. ओके, एंड नाउ we will have we will get some information, some knowledge about the weavers. Who were the weavers? Weavers कौन होते थे? Weavers जो थे, they belong to communities, the communities which were specialized in weaving, है ना, जिनकी weaving में जो बहुत ही specialized होते थे. और उनका जो स्किल होता था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता जाता था, है ना. इट यूज टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ऐसे बहुत सारे वीविंग कम्युनिटीज हमारे कंट्री में थे. लाइक बंगाल के तांती वीवर्स थे, तांती वीवर्स ऑफ बंगाल. देन नॉर्थ इंडिया में जुलाहास थे, या जिनको हम मोमिन वीवर्स भी कहते हैं, जुलाहास और द मोमिन वीवर्स. ओके, and then we see that there was Saleh and Kaikolar. These were the weavers of South India. 3 weavers are given of South India: Saleh, Kaikolar, and Devans. Okay, these were the weavers of South India. So these are the some of the communities which were very much famous for weaving. And now if we see various stages of production, the first stage was spinning. ठीक है, स्पिनिंग जो थी वो पहला स्टेज होता था, जो कि मोस्टली वुमेन ही करती थी. स्पिनिंग वाज डन बाय वुमेन. स्पिनिंग हुआ सूत काटने का जो काम होता है. एंड जो स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो क्या थे? स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट चकला, चरखा और तकली. चरखा क्या हुआ? जिससे चरखा चला करके वीविंग की जाती थी. और तकली हुआ स्पिंडल, है ना, जिसपे स्पिनिंग की जाती थी. तो जो थ्रेड था ना उसको चरखा पे स्पन किया जाता था, चरखा पे ऐसे घुमाया जाता था और तकली पे वो रोल होता था. चरखा घुमा करके थ्रेड को स्पन किया जाता था और वो तकली पे रोल होता जाता था. और जब स्पिनिंग पूरा हो जाता था तो क्या होता था? वो वीविंग स्टार्ट होती थी. तब वो वीवर करता था.
तो स्पिनिंग का काम फीमेल मेंबर्स करती थी और वीविंग का काम जो है वो मेल मेंबर्स करते थे। और ज्यादातर जो कम्युनिटीज थी उसमें ये वीविंग का काम मेल मेंबर्स ही करते थे। अब स्पिनिंग हो गई, वीविंग हो गई, इसके बाद एक और काम होता था, दैट इज डाइंग, है ना। डाई का काम भी होता था क्योंकि जो भी कपड़े नेचुरली बनते थे उनमें कोई कलर नहीं होता था, उसके ऊपर से उसमें डाई यूज किया जाता था, कलर यूज किया जाता था। और अ, जो डायर जो होता था, जो कलर करने वाला होता था, द पर्सन हु यूज टू डाई द क्लोथ, दे वर नोन एज रंगरेज। ठीक है, उनको रंगरेज कहते थे। और जो प्रिंटेड क्लोथ्स होते थे उसमें वीवर्स को ब्लॉक प्रिंटर्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटर्स जो थे, ब्लॉक्स होते थे प्रिंट के, जिसको कपड़े पर जैसे प्रेस करके उसकी प्रिंट को कपड़े पर आ जाती थी, है ना। तो ब्लॉक्स पे जैसे प्रिंट किया हुआ है, एम्बॉस्ड है, उभरा हुआ है, उस पे कलर लगा दिया गया और फिर उसको प्रेस किया जाता था कपड़े पर। और इस काम को करने वाले जो ब्लॉक प्रिंटर्स होते थे, दे वर नोन एज चिप्पी गार्ड। ठीक है, डायर्स के लिए कहे जाते थे रंगरेज, और जो ब्लॉक प्रिंटर्स होते थे, दे वर नोन एज चिप्पी गार्ड्स। ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारा कुछ जो है इंडियन सोसाइटी का, इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि मिलियंस ऑफ इंडियंस का जो थे वीविंग स्पिनिंग के काम से जुड़े हुए थे, रंगरेज थे, चिप्पीगार्स थे। तो ये सबका जो लाइवलीहुड था वो इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पूरी तरह से डिपेंडेंट था। और जितना ज्यादा इंडियन टेक्सटाइल डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड को, उतना ही ज्यादा हमें फायदा हो रहा था। हमारे जो वीवर्स कम्युनिटी, वीविंग कम्युनिटी थी, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, है ना। हालांकि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कम प्राइस पे ही खरीद करके चीजों को बेचती थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बेनिफिशियल था। लेकिन ये कंडीशन बहुत दिनों तक नहीं रही। जैसा कि पीछे हमने देखा, एक तो ये डिमांड होने लगी कि इंडिया इंडिया से जो टेक्सटाइल जा रहे हैं तो लोग उन्हीं को खरीद रहे हैं, तो यूरोपियन जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे वो बैन की मांग करने लगे। बैन लग भी गया 1720 में। फिर वहां पर मशीन्स आ गए, जैसा कि हमने देखा, स्पिनिंग जेनी, देन दैट स्टीम इंजन। सो मशीन्स के हेल्प से वहां पर जब प्रोडक्शन होने लगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसकी जो डिमांड थी वो घट जाती, है ना। अब क्या हुआ कि अब जो इंडिया से जो टेक्सटाइल वहां पहुंच रहा था, उसको क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ compete करना पड़ता था, चाहे किसी भी जगह पे जाए। ब्रिटेन में तो compete करना ही पड़ता था। अदर यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका की कंट्रीज में जब जहां भी इंडियन टेक्सटाइल पहुंच रहा है वहां ब्रिटिश टेक्सटाइल भी पहुंच रहा है। तो इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ compete करना पड़ता था, है ना। Indian textile now had to compete with British textile in the European and American market, है ना। और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि जो हमें नुकसान हो रहा था वो ये था कि अ, अब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट, जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल ब्रिटेन में, उस पे भी लिमिटेशंस लगने लगे, रोक लगने लगे। कैसे? ड्यूटी बढ़ा दी गई। ड्यूटी क्या होता है, जब हम किसी चीज का इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, उसी को हम ड्यूटी कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड में, उस पर ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई। तो ड्यूटी जब इंक्रीज कर दी गई तो क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल की प्राइस बढ़ गई, है ना। और इंडियन टेक्सटाइल की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो गई। तो दीज आर द टैक्टिक्स कि कैसे इंडियन टेक्सटाइल के डिमांड को कम किया जाए। ठीक है।
तो जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. जिन मार्केट्स पर अभी तक इंडियन टेक्सटाइल जो था वो डोमिनेट कर रहा था, रूल कर रहा था, अब क्या होता है कि जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थे वो अब हमारे टेक्सटाइल को हटा चुके थे। अब इंडियन टेक्सटाइल की जगह इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल जो है दैट स्टार्टेड टू डोमिनेट। ठीक है, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन में मशीन्स आ गए। मशीन आने के कारण जो प्रोडक्शन का जो रेट था वो बहुत ही हाई हो गया और इतनी तेजी से प्रोडक्शन हो रहा था जिससे कि प्राइस कम हो गया। और इस कारण से जो इंडियन वीवर्स जो बना रहे थे टेक्सटाइल वो हाथ से बने होते थे, तो उनका कॉस्ट ज्यादा होता था, फिर उन पर ड्यूटी भी ज्यादा इम्पोज कर दी जा रही थी, तो कॉस्ट बढ़ गया और कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग होते होते हम देखते हैं कि जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थे वो अब डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, है ना। और जो थाउजेंड ऑफ वीवर्स थे अब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, जैसा कि अभी हमने देखा था, वीवर्स, स्पिनर्स, रंगरेज, चिप्पिगर्स, these all were involved in the textile industry. Now they were not getting orders, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट आ गया पूरी तरह का। और इसमें सबसे बुरा जो कंडीशन हुआ वो किसका हुआ, बंगाल में जो वीवर्स थे उनकी कंडीशन सबसे ही ज्यादा बैड हो गई। और इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो थे दे स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, है ना। और उनके जो एजेंट्स थे अब वो अब वो सब कुछ बंद कर दिए, अब वो एडवांस भी नहीं देते थे वीवर्स को। पहले क्या होता था कि जो कंपनी के एजेंट्स होते थे वो वीवर्स को पहले ही एडवांस दे देते थे, ऑर्डर दिया एडवांस दे दिया। लेकिन अब वो चीजें जो थी वो धीरे धीरे करके बंद होती गई क्योंकि अब डिमांड जो थी वो कम हो गई। So the condition of the weavers started to deteriorate, but what we find that this was not an end, है ना। Actually more bad situation was to come, because we see that by the 1830s what started, that this British cotton cloth started to flood Indian market. नाउ देखो, एक तरफ जो पहली चीज जो हम पे इम्पैक्ट हुई वो ये हुई कि जो हमारा वर्ल्ड मार्केट पे जो हमारा डोमिनेशन था वो खत्म हो गया, है ना। क्योंकि अब यूरोप के जो ब्रिटेन के जो क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, मशीन से क्लोथ प्रोडक्शन हो रहा था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, प्राइस कम थी, हमारी जो कपड़े जा रहे थे उस पर ड्यूटी लगाई जा रही थी, तो हमारे जो कपड़ों की डिमांड थी वो कम हो गई। और ये दैट वाज नॉट द एंड। इसके बाद दूसरा चीज क्या होता है कि हमारी जो मार्केट है इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में ब्रिटिश कॉटन क्लोथ जो है वो बुरी तरह से फ्लड कर गया। इतने ज्यादा नंबर में ब्रिटिश क्लोथ यहाँ पर आने लगे कि, और चीप, मशीन से बने हुए सामान सस्ते होते हैं, हाथ के बने हुए सामान कॉस्टली होते। तो जो मशीन से बने हुए सामान आ रहे थे, जो कपड़े आ रहे थे ब्रिटेन से, वो चीप थे हमारे लिए। और इस तरह से अगर हम देखें तो 1880s तक में 2/3 of all the cotton clothes worn by the Indians were made of cloth produced in Britain. जो इंडिया में लोग कपड़े पहन रहे थे उसमें से 2/3 जो कपड़े थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो ब्रिटेन के कपड़े थे, है ना। तो इस तरह से ये नहीं था कि सिर्फ इसमें इस जो कुछ भी हो रहा है इससे वीवर्स और स्पिनर्स ही अफेक्टेड हुए, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन जो कि स्पिनिंग का काम करके जिनका काम चलता था वो सारे के सारे जॉबलेस हो गए। ओके,
So, this is all for today. We will continue with this discussion in the next class.